Hello? Yes, Okay, so what I want is that each one of daily class, at least you can assign two people or three people, those who will be talking about at one particular topic. Okay, let us say, Priyanshu, today, let us say I ask you that, can you please talk about the Linux system architecture? Can you talk about the kernel and shell? So, will you be able to do that? Yeah, Priyanshu is admitting now. Aditya, are you listening? Who all are yes, there? ma'am. So what the purpose is that all of you should be able to understand that the syllabus which is given to us is clear to you. Okay? Do you understand? Okay. Now, so you just Yes, tell me till now whatever we are doing is clear or not. clear, ma'am. for that for that you have to study the entire thing. Okay, for that you have to. So now I'm sharing another file with you and just move on to the topic, and I request all of you that please plan in such a manner that now you whatever we have done, because we are running ahead. It's not that we will be able to complete the course also within the time, but completing the course is not the thing which I'm looking for. I'm looking for that my student should know each and every part of the syllabus, and more than that, actually you should know more than that. Okay, so now if I want to go for that more than what is given in the syllabus, first of all I need to be sure about that whatever is been what is there in the syllabus is being done fully. I mean, it has been understood fully. And okay, do you understand what I'm saying? So that is Yes, why ma'am. I want that each one of you should tell me that yes I know this, yes I know, because as you can see the fifth unit, can you see the fifth unit? So the fifth unit is Yes, not a ma'am. fifth unit is not a problem since you are doing it otherwise also. So what I see here is the challenge which I see is this unit, because I don't know whether you people have executed the commands of Linux or not. So this is my concern, which I have shared with you. So now I'm sharing another PPT with you. Okay, just wait, of Linux. And please make sure everyone that if there is any difficulty you are facing, or if there is any command that you actually cannot do, please, we will be talking about the command in the class, and let us keep one command or two commands, like okay, we'll be practicing this only, and we have done that also, because the online compilers are there, so that's not a problem. Okay, now let us see how many of you answer today. Let us see, because when I talk about shell programming, then I understand that the basic commands of the Linux is being understood by everybody, because then only I can talk about shell programming. But if I am talking about shell programming, and if the people are facing difficulty in the basic command of Linux, then it is of no use, right? Do you understand? Okay. So now let us now please stop this coming and going and just concentrate on the job. Okay. Can you see this? Can you see this PPT? Yes, ma'am. Okay, can you see this now? I've increased the font size. Okay, No, ma'am. can you see this? Now, yes, ma'am. Uh-huh. Yes, ma'am. Hmm. Now see, this was the thing which we were doing, and we were trying to understand that if we have to use if statement with case, switch case, we've seen the switch case as well. So now if we see that how the switch case is written and how the we can use if, so this is the typical example. Please note down this one. Now what am I doing? I'm creating a file, and in that file, what am I doing? I am just checking that uh, see, now I will not allow anybody now. Enough. Please stop coming and going. Okay, so as you can see, so what the command we are writing in the shell, that if Z, which we are giving, okay, is defined as null, okay, and now what we are doing, dollar
ये लड़कियां भाई ये क्लास में तो कुछ करती नहीं है। सलोनी कुमारी, आप इतना लेट क्यों आते हैं क्लास में? Okay, so then if it is null, then it is an unknown vehicle, and we are using, as we in C++ we use elif. Okay, so we are using else if, so we are using elif and then. Okay, so this is the typical syntax which we are writing. Please note down this one, note down, so that we will be executing this also. Please note down. Pushpendra, how are you, Pushpendra? Hello, am I audible? Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. please note down this command, shell programming. Done. Done? Yes, ma'am. Now, Priyanshu, you are using computer? Yes, ma'am. Please execute this. Have you written completely? Yes, ma'am. Okay. Then afterwards, you will be saving it. Okay, you know that shell program will be saved. Now, since you are using online, then there's not a problem. It's not a problem. So please execute this one, the whole file which I have given you. Please. Okay, ma'am. Rest others, please switch off your mics. Yes, Priyanshu, execute and show me what is the output. I'm stopping the share and you do that, okay? Okay, I'm giving you the. Ma'am, give me 5 minutes. I will execute it. Okay. So now, as you can see in the program, that the use of, as we use switch case, we use if, the same syntax is given here. And you can note down the syntax also. I think we were here only in the last class. PPT not showing, ma'am. No, wo actually Priyanshu is showing the output. Now Priyanshu, just paste it and then see what it gets. What do you get as an output? What do you get? Just wait. मैम अभी पेस्ट नहीं हो सकती क्योंकि वो इमेज के फॉर्म को पूरा टाइप करना पड़ेगा मैम। टाइप कर मैम ली। 5-7 मिनट में दिखा देंगे मैम, टाइप अच्छा करके ठीक दिखा है, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, फिर मैं शेयर करती हूँ, तब तक आप जब आपका हो जाए तो मुझे बताइएगा, ठीक है। जस्ट अ मिनट, मैं शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे देर सभी लोग हैं मेरे ख्याल से। सलोनी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। यस मैम। हाँ यस मैम। ओके, सलोनी मुझे ये बताइए, जो ls कमांड होता है, व्हाई वी यूज ls कमांड? हाँ सलोनी,
सलोनी, हाँ ls कमांड हम यूज क्यों, यस मैम। ls कमांड हम यूज क्यों करते हैं ये बताइए। हाँ जी बोलिए सलोनी, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस मैम। तो सलोनी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ और मैं ये पूछ रही हूँ कि ls कमांड को हम क्यों यूज करते हैं, आप बताओगे बेटे? हम्म, हाँ जी बोलिए। मैम हाँ बोलो, बोलिए बोलिए। मैम, ls command is a basic command in Linux used to list files and directories. ओके वेरी गुड, वेरी गुड। लिस्टिंग का मतलब क्या होता है? अच्छा ls कमांड के साथ में लिस्टिंग हम करते हैं, चलिए मान लिया। ls के साथ में एडिशनली इफ वी वांट टू यू नो व्हाट आर द थिंग्स व्हिच वी यूज, ls का जो सिंटेक्स है वो बताइए। लाइक यू नो सामने देखिए, ये देखिए, ये आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी, ठीक है? यस Now, मैम। यहाँ पे लिखा है मैंने ls foo इज द नेम ऑफ द फाइल। ओके चलिए आप बताइए कि जैसे मान लीजिए ls foo हमने किया, फाइल है, डायरेक्टरी है, व्हाटएवर। नाउ ls foo करने से क्या होगा? ls आदित्य, आदित्य, Yes, ma'am. can you Yes, see, ma'am. can you see that when we are at ls and cat and we are still not student are still not able to answer quickly, then how can we think about shell programming? Yes, ma'am. सलोनी, Sorry, ma'am. सलोनी, आपको सामने स्क्रीन दिख रही है और स्क्रीन में लिखा भी हुआ है, अगर आप पढ़ सकते हो तो। सामने लिखा हुआ है इट विल प्रिंट द मैसेज लाइक great stories of no such file in directory. That means it actually Yes. lists the particular file for which the name is given. So the name is foo which is given. So it will look for a file name foo. Okay. Next command, Saloni, is cp command. Why we use cp command? Can you please tell me why we use cp command? What is the purpose of cp command? Why we use cp command? Yes, please. मैम, कॉपी करने के लिए। कॉपी करने के लिए। तो जो ये सामने कमांड दिया हुआ है cp y और उसके बाद लिखा हुआ है स्पेस फिर y.bak, तो अब इसमें क्या कॉपी हो रहा है और किस में कॉपी हो रहा है ये बताएंगे आप मुझे? क्या ये सही लिखा हुआ है? बताइए बेटे, ये क्या सही लिखा हुआ है? ओके सेम हाँ। ये सही लिखा हुआ है, तो क्या आउटपुट आएगा इस पर्टिकुलर कमांड का? आउटपुट क्या आएगा? इस कमांड का आउटपुट क्या आएगा? पता नहीं। अभी आपने कहा ना कि ये कॉपी करने के लिए यूज होता है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? सलोनी यही तो पता होना चाहिए। फिर आप लोगों को नहीं मालूम है तो या तो आप पूछिए कि ये कैसे आया, ये क्या आया, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि क्लासेस को आप सुनते नहीं है ध्यान से। अब से आप ही लोग बोलेंगे। आप अब जितना मैंने पढ़ाया है मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगी, मैं आपसे ही पूछूंगी कि जो पिछला पढ़ाया है वो बताइए कितना आता है आपको। देखिए y एंड y डॉट बैक लिखा हुआ है, डॉट बैक सेकेंडरी नेम है, ठीक है? तो नेम ऑफ द फाइल क्या है? y, और हम इसे कॉपी किस में कर रहे हैं? y डॉट बैक में, ठीक है? तो अब यहां देखिए हमने कहा mv कमांड का मतलब क्या होता है? mv मतलब
एमवी का मतलब क्या होता है बेटा? यस प्लीज, एमवी कमांड रंजन कुमार किस लिए यूज होता है? रंजन, एमवी किस लिए यूज होता है? आप लोग क्लास में हैं भी या नहीं है, ये बताइए मुझे आप। Yes, ma'am. तो ये लोगों की आवाज क्यों नहीं आ रही? पवन कुमार, यस मैम, एमवी कमांड क्यों यूज होता है? मूव करने के लिए मैम। मूव करने के लिए। क्या मूव करने के लिए? यहाँ पे mv y डॉट बैक एंड y डॉट ओके लिखा हुआ है। व्हाट इज मूविंग वेयर? इसकी आउटपुट क्या होगी? क्या मूव कर रहे हैं हम लोग? वाई डॉट बैक मैम, वाई डॉट ओके में मूव हो रहा है। ओके, उसमें मूव हो रहा है। देखिए, जब भी हम बैक एक्सटेंशन रखते हैं वो बैकअप फाइल होती है, ठीक है? वो बैकअप फाइल होती है। बैकअप फाइल का मतलब क्या हुआ कि वो फाइल, मान लीजिए आपकी मेन फाइल के साथ एक आपकी बैकअप फाइल क्रिएट होती है। सी प्लस प्लस में भी होती है ना। और अगर मान लीजिए आपका मेन प्रोग्राम डिलीट हो गया किसी वजह से, तो आप बैकअप फाइल से वापस उसको प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वो साथ में आपके एक बैकअप फाइल बन गई है। अब आपने अपनी फाइल डिलीट कर दी, आप चाहते हैं कि आपका कंटेंट वापस आ जाए, मिल जाए, है ना? तो आप घबरा गए कि अरे मेरा तो इतना लंबा प्रोग्राम लिखा था, ये तो डिलीट कर दिया किसी ने, अब क्या करूं? तो अगर आपने उसे एक बार कंपाइल किया है तो एक बैकअप फाइल क्रिएट हो जाती है, और उस बैकअप फाइल से आप उसको रेस्टोर करके, रीइंस्टेट करके वापस से उसी का जो आपका जो प्रोग्राम था वो आपको वापस से मिल जाता है, ठीक है? तो आप बैकअप से भी वापस इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये मूव हो रही है फाइल, है ना? सो यू आर मूविंग y डॉट बैक टू y डॉट ओके, ठीक है? नाउ नेक्स्ट कमांड है टेल कमांड। नेहा, नेहा, यस मैम। नेहा, टेल -10 myf, इसकी आउटपुट क्या होगी? हेलो, हाँ हाँ नेहा, नेहा, यस मैम। नेहा, बहुत बार कर चुके हैं इसको तो हम। टेल -10 मतलब -10 myf, इसकी आउटपुट क्या होगी बताइए? इतनी देर में आंसर आ जाना चाहिए बेटा, बहुत टाइम लेते हो आप लोग। राजू शाह, टेल की आउटपुट क्या होगी? टेल -10 myf, इसका आउटपुट क्या होगा? मैम भूल गए, नहीं पता। क्यों भूल गए? मतलब आप पीछे का भूलते जाएंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? सूरज, टेल -10 myf, आउटपुट क्या होगी? सूरज, प्रतीक्षा कुमारी, टेल -10 की आउटपुट क्या होगी? एनीबडी जो भी यहाँ पे क्लास में है। आप यहाँ पे सिर्फ तमाशा देखने नहीं आए, यू आर डूइंग अ क्लास। मैम हाँ मैम MIF मैम ये बॉटम की टॉप 10 लाइन को शो करेगा मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। एक डॉक्यूमेंट में अगर आपको उस डॉक्यूमेंट को पूरा नहीं पढ़ना, उस डॉक्यूमेंट में 1000 पन्ने हैं, अब वो 1000 पेजेस को आपको नहीं पढ़ना, आप सिर्फ ये चाहते हैं कि लास्ट की 10 लाइंस डिस्प्ले हो, तो आप उस डॉक्यूमेंट की लास्ट की 10 लाइंस को डिस्प्ले कर सकते हैं विद द टेल कमांड। प्रतीक्षा कुमारी, सुनाई दे रहे हैं आपको? मैम बताएं मैम आउटपुट इसका। आप बताने की जरूरत नहीं है नेहा, आप क्लास में रहती हैं, आप सोती रहती हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। नो, दिस इज नॉट डन। वो आपका टर्न गया बेटा, नाउ यू कैन नॉट आंसर। ओके, नेक्स्ट कमांड पुष्पेंद्र। पुष्पेंद्र, नेक्स्ट कमांड है मेल राज। ये क्या कमांड है? यस मैम। ये क्या कमांड है? मेल राज, ये क्या कमांड है? इट विल मेल समथिंग। ओके, सो पहले इट विल मेल समथिंग आई थिंक मैम, बिकॉज़ आई डिडंट। हाँ, बट एटलीस्ट यू कैन अंडरस्टैंड कि मेल लिखा हुआ है, देन इट इज एसोसिएटेड विद द mailing option or the email option, because earlier there wasn't email. So on using text, how can you send a mail? Using mail command, mail, okay, and then the mail can be sent to the particular person. Okay, now अगर हम next question will be
फ्रॉम रंजन कुमार, आपने जवाब नहीं दिया। रंजन कुमार, मुझे ये बताइए, अगर मैंने लिखा है सॉर्ट डैश आर डैश एन MIF, इसका क्या मतलब होता है? सॉर्ट डैश आर डैश एन MIF, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कमांड? यस प्लीज, अक्षत सिन्हा। Yes, ma'am. या व्हाट इज द मैम आउटपुट? हाँ, दोनों में से कोई भी बताएं जिसको आता है। मैम शॉर्ट कमांड पहले तो मैम अरेंज करने के लिए यूज होता है। रिवर्स का Very good. मतलब R आर का मतलब रिवर्स के लिए होता है, रिवर्सल होता है। हाँ, Yes, वेरी ma'am. गुड। और एन का मतलब न्यूमेरिकली अरेंज होता है। Yes, ma'am. एन का तो मतलब? मैम न्यूमेरिकली और रिवर्स ओके न्यूमेरिकली मैम मतलब ओके, number wise. तो जो फाइल है वो किस तरह से अरेंज होगी? मतलब रिवर्स ऑर्डर न्यूमेरिकली में। रिवर्स। रिवर्स ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर को हम एक चीज और कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना? असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर मतलब कि 100, 99, 98 सो ऑन, ठीक है ना? और किस तरह से अरेंज हो जाएगी? न्यूमेरिकल वाइज हो जाएगी, यानी कि जो लास्ट रोल नंबर है, जैसे कि 10, मान लो 9. हाँ 10, 9, 8, 7, इस तरह से वो फाइल अरेंज हो जाएगी। प्रतीक्षा कुमारी, नेहा यादव, आप सबको सुनाई दे रहा है? इसका आउटपुट क्या आएगा? ओके, देन नेक्स्ट कमांड है हमारा डेट कमांड। डेट कमांड का आउटपुट क्या रहेगा, कोई बताएगा? रंजन कुमार, आप बताएं। हाँ, डेट कमांड का आउटपुट क्या रहेगा? It Yes. will display date, ma'am. इट Today's विल, current date. वेरी गुड, बहुत सिंपल है। इट विल डिस्प्ले डेट, बट कैसे? फॉर्मेट बताइए, क्या फॉर्मेट होगा? क्या फॉर्मेट होगा? DDMM YY YY DDMM MM what YYY DDMM क्या रहेगा? क्या आपने इसको एग्जीक्यूट करके देखा है? Ma'am, इसका मैम month, date, ma'am, day, month, day and after date year. क्या रहेगा? उससे पहले मैम डे, मैम हाँ। डे, मंथ, हाँ। आफ्टर ईयर, डे, मंथ, अच्छा। आफ्टर ईयर, DDMM by. अच्छा, अब मैं अगर आपको नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट दिखाऊं तो आप देखिए एलएस कमांड में नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट 1 होता है, मतलब जस्ट आपको नेम ऑफ द फाइल देना होता है। सीपी कमांड में हमेशा 2 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, यानी एक होता है सोर्स, दूसरा होता है डेस्टिनेशन, यानी 2 आर्ग्यूमेंट देने पड़ते हैं। एमवी में भी 2 आर्ग्यूमेंट देने पड़ते हैं, ठीक है। टेल में हमें ये बताने पड़ते हैं कि कौन से नंबर और कौन सी फाइल, कितने नंबर लाइन और कौन सी फाइल, यानी 2 आर्ग्यूमेंट देने पड़ते हैं। मेल में सिर्फ 1 आर्ग्यूमेंट देना पड़ता है। सॉर्ट में यहाँ पे अगर इस पर्टिकुलर कमांड की बात करूं तो यहाँ पे 3 आर्ग्यूमेंट है, जिसमें एक फाइल का नाम है और 2 उस पे लगाए जाने वाले मेथड्स हैं कि वो रिवर्स में करना है या न्यूमेरिकल करना है या किस तरह से करना है। डेट कमांड को अगर आप देखें तो डेट कमांड में कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं दिया गया है। अगर आप डेट बोलेंगे तो डेट एज इट इज विल बी कमिंग। प्रियांशु, आपका हो गया हो आउटपुट तो दिखाइए। ओके, नाउ नेक्स्ट कमांड है क्लियर कमांड। व्हाट डज क्लियर कमांड डू? ओके, प्रतीक्षा कुमारी, हमने बहुत प्रतीक्षा करी है आपकी, अब आप ये बताएं जरा। प्रतीक्षा कुमारी, खुशी कुमारी, यस मैम। हाँ, क्लियर कमांड, क्लियर कमांड से क्या होता है बेटा? यस प्लीज, क्लियर कमांड से क्या होता है बेटा? हेलो, क्लियर कमांड का क्या यूज है भाई? प्रतीक्षा, आपको नहीं मालूम है? किसको मालूम है? किसको मालूम है क्लियर कमांड का यूज? खुशी? Ma'am, it will clear the screen, ma'am. Yes, Clear the terminal. yes, it will Clear. clear because you are typing the commands, and there are so many commands on the terminal, and if you want to clear that, so you can give clear command। उसके साथ आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, कुछ भी आर्ग्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली दिस विल बी क्लियरिंग द स्क्रीन। ओके, नाउ अब मुझे कोई बताएगा कि why just a minute, why the command line arguments are required? Just a minute. Why the command line arguments Ma'am, are required? Ma'am, there are different types of a command. Just like ma'am sort, we have ma'am dash n, and we have dash r. So ma'am, Okay. different arguments have different uses. Okay. Now my question is from Neha Yadav. Neha, can you see in front of you
it is written that we write shell script. Okay, so what is shell script? ये आ रहा है ना, how to write shell script. Shell script होती क्या है? Yeah. Neha, what is a shell script? Yes? Anybody? What is a shell script? Maybe वो थोड़ा connection का problem है इनके में. Raju Shah, It is anybody? a script or नहीं, मैम what is? ये हाँ, बोलिए. मैम ये कंप्यूटर प्रोग्राम है जो मतलब लाइनेक्स और यूनिक्स के लिए मतलब बना है Very good. और मैम उसी के इंटरप्रेटर पे रन करता है. Very good. it is used to automation your tasks and daily routine works. Like आप कर रहे हो कुछ भी काम करते हैं तो मैम उसमें स्क्रिप्ट हम बना लेते हैं कि we make a script and after that हमें ना पूरे कमांड्स अलग अलग रन करने की जरूरत नहीं होती है. स्क्रिप्ट से हम पूरे कमांड एक साथ रन कर सकते हैं. वेरी गुड. तो हम एक एक Ma'am, it कमांड is को a टाइप one. करें और हम फिर भूल जाएं कि हमने क्या. जैसे मान लीजिए डेली का मेरा कुछ टास्क है. डेली आई परफॉर्म सर्टेन टास्क विच इज which is my job. So it is better that you create a shell script, write all of the command into that, save that and run that. So in one go, all the commands will get executed. Okay, so this is the reason why we create. Okay, now what is VI? What is VI? Yes, कौन बताएगा? खुशी कुमारी, what is Text VI? editor, ma'am. It's a command line text editor. एक मिनट, खुशी से भी पूछ लूं मैं. खुशी, VI क्या है? What is VI and MC edit? खुशी, मेरी आवाज आ रही है आपको? सलोनी, आवाज आ रही है मेरी आपको? Yes, ma'am. हाँ, सलोनी, ये VI क्या होता है? BI. कहाँ पे BI? What is VI? What is VI editor? चलिए बताइए. What is VI editor? मैम स्क्रीन ओरिएंटेड एडिटर. ओके, क्या यूज होता है इसमें? क्या करते हैं हम? VI एडिटर को यूज किस लिए करते हैं? VI एडिटर को बेटा क्यों यूज करते हैं हम? हेलो, यस, VI एडिटर को हम यूज क्यों करते हैं? कोई बताएगा? इतनी लाइनेक्स टेक्स्ट के एडिट करने के लिए. बिल्कुल, ये एडिटर है. जैसे कि आप नोटपैड को यूज करते हैं. नोटपैड को यूज क्यों करते हैं आप? क्योंकि आप उसमें क्या लिखते हैं? आप सी का प्रोग्राम लिखते हैं, C++ का प्रोग्राम लिखते हैं. आप टर्बो C++ को जब टेक्स्ट एडिटर को यूज करते हैं तो क्यों करते हैं? क्योंकि आपको उसमें प्रोग्राम लिखना होता है. सिमिलरली अगर हम लाइनेक्स यूज करेंगे तो हमें VI एडिटर का यूज करना होता है ताकि हम अपनी शेल स्क्रिप्ट्स को उसमें लिख सकें, हमारा प्रोग्राम हम उसमें लिख सकें. तो ये एडिटर है जिसमें हम एडिट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम्स को, इसलिए हम VI का यूज करते हैं. खुशी कुमारी, आप बताइए कि सेव करने के लिए हम कौन सा कमांड यूज करते हैं शेल स्क्रिप्ट को? शेल स्क्रिप्ट को हम जब सेव करेंगे तो किस कमांड से सेव करेंगे? यस प्लीज. यस नेहा, शेल स्क्रिप्ट को हम सेव कैसे करते हैं? सैफ अली, भाई आपके आंसर आने चाहिए. ये क्लास मेरे लिए थोड़ी है, ये क्लास आपके लिए भी तो है भाई, है ना? व्हाट सैफ अली, हम शेल स्क्रिप्ट को सेव कैसे करते हैं? यस, देखिए आप लोग वीडियो ओपन करके और आंसर करिए. ऐसा लग रहा है मुझे सब लोग सो रहे हैं. नो मैम. हाँ बोलिए, शेल स्क्रिप्ट को हम सेव कैसे करते हैं? मैम
कंट्रोल प्लस डी में। बेटा सामने लिखा हुआ है, अगर ये लोग देख भी रहे हो ना तो ये देख कर भी बता सकते हैं। आई वंडर कि ये लोग क्या कर क्या रहे हैं ये लोग। आर यू अटेंडिंग द क्लास? सैफ अली मैम सेंट्रल प्लस डी टू सेव, सेंट्रल प्लस सी। तो खुशी आपको दिखाई नहीं दे रहा? सामने लिखा हुआ है, कांट यू रीड इट? सामने लिखा हुआ है। यस मैम। मैम तो बताइए ना, सेंट्रल प्लस डी। सेंटर नहीं, ये कंट्रोल है। CTRL को कंट्रोल कहते हैं, कंट्रोल प्लस डी। सॉरी मैम, कंट्रोल, सॉरी मैम, कंट्रोल। खुशी मुझे नहीं पता आप लोगों के क्या प्लान्स हैं, बट आई एम रियली नॉट हैप्पी विद ऑल ऑफ यू। आई एम रियली नॉट हैप्पी विद ऑल ऑफ यू। कुछ बच्चों ने तो ये भी बोला कि पता नहीं, एक दो बच्चों ने बोला पता नहीं मैम क्या पढ़ाती हैं, हमें समझ नहीं आता। पर मुझे ये नहीं समझ में आता कि मैं ऐसा क्या पढ़ाती हूँ जो आप समझ नहीं पाते, कि सामने लिखा हुआ है और मैं पूछ रही हूँ कि कैसे सेव करना है और आप वो नहीं बताते। और अब तो हिंदी में बोल रही हूँ, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में, आपको तो समझ में आना चाहिए। बता देना। नहीं आप लोग बेटा, आप लोग अटेंटिवली नहीं पढ़ रहे हो, मेरा कंसर्न ये है। और ये मुश्किल चीज है जो अगर आप नहीं पढ़ोगे आपको नहीं आएगी। मेरा स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रहा था तो